हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे किसी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं या किसी बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू आप एक एक्सप्रेशन दिया है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन दिया है बूलियन एक्सप्रेशन को उसको प्रूव करने के लिए आता है। तो ऐसा करने के लिए आपको सारे बूलियन लॉ ठीक से याद होने चाहिए। अगर आपको बूलियन लॉ ठीक से याद नहीं है तो आप बूलियन लॉ ठीक से याद कर लीजिए, जो कि इस वीडियो ऑलरेडी इस पे पड़ा हुआ है। आप पहले ठीक से याद कर लीजिए, फिर इस वीडियो में आप उसको सीख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। इन दिस class we will just do this boolean expression simplification. All right, simplification of boolean expression. So xyz plus x complement yz plus xy complement z plus xyz complement equal to what? So in the first two terms, if you look at this, yz is common. So here we can say this, there is a law a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c. This distributive law in the reverse order, a is common to both, so this can be written as a dot b plus a dot c can be written as a dot b ब्रैकेट में b plus c। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ही हमने yz देखा, दोनों में कॉमन है तो yz कॉमन ले लिया, आया x बार x प्लस x बार, x y बार z x y z बार, इसमें x कॉमन है तो भी जो भी आ रहा y बार z प्लस y z बार से कोई फायदा नहीं हो रहा, उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, जब आगे जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। ठीक है, नाउ here we'll keep writing laws also. a plus a bar equal to 1, तो यहां पे x dot x bar will become 1, yz plus x y bar z plus x y z bar, right? Here again if we apply this first law only, this distributive law, z is common, it becomes y plus x y bar। x y बार को हम y बार x भी लिख सकते हैं क्योंकि a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है। नाउ दिस वन फॉर्मूला एब्जॉर्प्शन लॉ, a प्लस a बार b इक्वल टू a प्लस b, राइट? यूजिंग दिस फॉर्मूला this will become z y plus x plus x dot y dot z bar. All right, now on opening this, it will become yz plus xz plus xyz bar। ठीक है, now in the last two term x is common, the last two term x is common, so if we take x as common, we'll get z plus z bar y। Again this same formula will be applied, a plus a bar b equal to a plus b। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो ये हो गया yz plus in the bracket x z plus y, and on opening this we will get yz plus xz plus xy। This is the simplified result for solving this। okay, z plus x complement plus y, here if you consider z as a, x as b, z as a and x complement plus y as b, so which law is applicable? a plus b dot a plus c equal to a plus b dot c। all right, so it will become z plus x dot x complement plus y। all right, on opening this bracket using distributive law, it will become
x dot x bar plus xy. A dot a bar is 0. So we can write this wrong. We can write it z plus x, z plus 0 plus xy. And formula is a plus 0 equal to a. Where 0 can be removed. So it will become x, z plus xy. 0 is gone. Alright. We can write z plus xy. Here if we apply the distributive law तो ये हो जाएगा z plus x और z plus y. ठीक है. This will be the answer. Now this expression, is it visible to you? हम बड़ा करके लिख दे रहे हैं p complement plus q dot q complement plus r. This is whole complement. Plus under bracket p complement plus r. We have to prove it as 1. Applied De Morgan's law, it will become p complement plus q whole complement plus q complement plus r whole complement. All right. Plus p complement plus r. Now again apply De Morgan's law. It will become p double bar recomplement of p dot q complement plus recomplement of q dot r complement plus p bar plus r. All right. Now recomplement of p equal to p q bar plus q r bar plus p bar plus r. Now bring this first and third term together, p bar plus p q bar and r plus q r bar. Here you apply distributive law. All right. हमने क्या लिखा, इसको a माना, p बार को p को b माना, q बार को c माना, तो क्या लिखेंगे p बार प्लस p डॉट p बार प्लस q बार प्लस अगेन r प्लस r बार, दैट थर्ड एंड फोर्थ टर्म, और r प्लस q. P bar plus P equal to 1. So it will become Q P bar plus Q bar, and there R plus R bar is 1. That's why it will become R plus Q. Here you see Q bar plus Q will become 1. That's why we'll get P bar plus R plus 1. Anything plus 1 equal to 1 only. This way it is proved. Alright. तो ये है, आपने ओपन किया a डॉट ब्रैकेट में b प्लस, अब यहाँ पे c लगा है कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट a डॉट b होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. दिस प्लस विल बिकम डॉट और a डॉट c होल कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट इज ब्रोकन. डी मॉर्गन लॉ लग गया. ठीक है. उसके बाद अगेन आई विल अप्लाई डी मॉर्गन लॉ. So it will become a bar plus b bar dot a bar plus c bar. Okay. Now here you will apply this place. You will apply what? You will apply distributive law. All right. Distributive law लगाएंगे तो आएगा ये a bar plus b bar c bar. Now you will open this bracket
ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ए बार प्लस बी बार सी बार. Okay, what will be the next step? We'll open this inner bracket, this bracket also, so it will become a dot c dot a bar plus a dot c dot b complement dot c complement, and we know x dot x complement equal to 0. So second and third term, a dot a complement is in the second term and b c dot c complement is in the third term. So it will become a dot b plus c dot 0 प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट 0. एक्स डॉट 0 इक्वल टू क्या होता है? एक्स डॉट 0 क्या होता है? एनीथिंग डॉट 0 इक्वल टू 0 ओनली. ऑल राइट, एनीथिंग डॉट 0 इक्वल टू 0 ओनली. सो इट विल बिकम ए बी प्लस 0 इक्वल टू ए बी बिकॉज एक्स प्लस 0 इक्वल टू एक्स. सो ए बी इज द आंसर. All right, so look at this example. This in this video only we have done only this. We have calculated and we got xy plus yz plus xz, but here this same thing is done in other way. Instead of reducing left hand side, right hand side is been expanded. So right hand side को लिया गया, ठीक है. सो इसमें फर्स्ट टर्म जो एक्स वाई है इसके साथ हमने 1 लिख दिया. क्यों लिख दिया 1? क्योंकि हम ये कह सकते हैं ए डॉट 1 इक्वल टू ए, तो हम ए को कभी भी ए डॉट 1 लिख सकते हैं, ठीक है. तो यहां 1 लिखने का लॉजिक क्या, कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है उसमें देखिए एक्स वाई जेड सभी में सारे वेरिएबल आ रहे हैं, तो हम ये 1 लिख के बाकी जो मिसिंग वेरिएबल उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक. तो इसको लिख दिया एक्स वाई डॉट 1, एक्स वाई की जगह, वाई जेड की जगह वाई जेड डॉट 1 और जेड एक्स की जगह जेड एक्स डॉट 1, ठीक. अब देखिए एक्स डॉट एक्स बार इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह एक्स डॉट एक्स बार भी लिख सकते हैं, वाई डॉट वाई प्लस वाई बार लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है. एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम कहीं पे भी x1 की जगह x प्लस एक्स बार या x प्लस एक्स बार की जगह 1 लिख सकते हैं. इसी तरह से 1 की जगह हम y प्लस वाई बार भी लिख सकते हैं. ओके, सो हमने यहां पे यही किया है. 1 की जगह वाई जेड एक्स डॉट वाई के साथ z प्लस जेड बार लिख दिया है, ठीक है. यहां पे z प्लस जेड बार, फिर y डॉट जेड की जगह y डॉट जेड प्लस y डॉट जेड और 1 की जगह x बार प्लस x, ठीक है. जेड एक्स से भी सेम ऐसा ही सेम लॉजिक लगाया. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के वाई जेड को ओपन कर दिया. वाई जेड को क्या लिख दिया? वाई जेड एक्स बार वाई जेड जेड, वाई जेड एक्स बार वाई जेड एक्स, ओपन करते चले गए. ओपन करने के बाद हमने क्या देखा, इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा दिया गया, जो भी बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है. ऑर्डर में लगाने से क्या फायदा हुआ कि एक्स बार वाई जेड, ये देखिए एक्स बार वाई जेड कहीं पे दोबारा रिपीट हो रहा है? नहीं. एक्स वाई बार जेड रिपीट हो रहा है? नहीं. एक्स वाई जेड बार रिपीट नहीं हो रहा है. एक्स वाई जेड 3 बार आ रहा है, ठीक है. एक्स वाई जेड 3 बार आ रहा है क्योंकि एक लॉ होता है एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, इसलिए 2 बार या एक्स डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, तो 2 बार एक्स किसी वेरिएबल को लिखने का इस तरह से मतलब नहीं है, इसलिए एक्स डॉट वाई डॉट जेड, एक्स डॉट वाई डॉट जेड 3 बार के बजाय इसको फाइनल आंसर में केवल एक ही बार लिखेंगे, ठीक है. और जो भी रिजल्ट आया इस एक्सप्रेशन को आप देखिए. सो दिस इज सेम एज द ओरिजिनल एक्सप्रेशन विच वी हैव स्टार्टेड विथ, ठीक है.